Hey guys, कैसे हैं सब? So again I welcome you all and this is me Ankita. So in today's class we will discuss about the physical and chemical properties of alcohols and phenols. In our previous class we already discussed about the preparation of alcohols and phenols. Okay, I hope you all have watched that class. So today we will study some physical and chemical properties of alcohols and phenols. So let's begin. Before starting the properties, we should understand the structure of the functional group, that is the structure of hydroxyl group, because the properties of the alcohols and phenol are because of this OH group. Okay, so in case of alcohol, let us take the example of methanol. Okay, this is the structure of methanol, CH3OH. In this case, the carbon atom, this carbon atom is bounded to oxygen atom by sigma bond. Okay, the bond which is present between carbon and oxygen is sigma bond. Now how the sigma bond is formed? So it is formed by the overlapping of sp3 hybrid orbital of carbon and sp3 hybrid orbital of oxygen. So carbon and oxygen both are in sp3 hybridized state. Keep this thing in mind. Both carbon and oxygen are sp3 hybridized. Okay, and the bond length of the carbon oxygen bond is 142 picometer. 142 picometer. The bond length is around 108.9 degree. Okay, 108.9 degree, which is somewhat less than that of tetrahedral angle. Okay, tetrahedral angle कितना होता है? 109 degree 28 minutes, right? So why this bond angle is less than that of tetraangle? Because of this lone pair of electron which is present on oxygen atom, right? अभी कंसिडर करो, ये मेरे फिंगर्स की टिप्स पे ऑक्सीजन है, राइट? लोन पेयर है, ओके? और यहाँ पे देयर इज योर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम. ओके, तो जब आपके लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पे, दो लोन पेयर प्रेजेंट है. ओके, सो दो लोन पेयर पास में प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. रिपल्शन हो रहा है, दैट मीन्स द लोन पेयर ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. जैसे जैसे ये लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो नीचे का पार्ट क्या हो रहा है? दे आर कमिंग क्लोजर, राइट? सो दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग. पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर. सो बॉन्ड लेंथ आपको याद रखनी है, बॉन्ड एंगल याद रखना है, और हाइब्रिडाइज कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है एटम्स ये याद रखना है. ओके, बट इन केस ऑफ फिनॉल, द कार्बन एटम टू विच ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड इज इन sp2 hybridized state. ये आपको याद रखना है. ओके, यहाँ पे जो कार्बन एटम प्रेजेंट है जिसको आपका ऑक्सीजन अटैच है, दिस इज sp2 hybridized. ओके, ये वाला. नाउ यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, इट इज समवॉट लेसर देन दैट ऑफ इन अल्कोहल. इट इज नियर अबाउट 136 पिकोमीटर. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज ये देखो, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू द रिंग एंड दिस लोन पेयर विल नाउ in resonance with this pi electron, right? तो जैसे ये resonance में जाएगा, this carbon oxygen bond acquire partial double bond character. हम ये पढ़ेंगे जब हम फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है, और बॉन्ड कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है. हमने ये चीज पढ़ी है, राइट? सो दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड is slightly less in phenol. Okay, so I hope the structure of functional group, the structure of OH is clear to every one of you. Okay, so now we will discuss about the physical properties of alcohols and phenols. Okay, now alcohols and phenols, they consist of two parts, right? Alkyl group and hydroxyl group. In case of phenol, it is aryl group and hydroxyl group. So near about जो भी properties है, the main properties are because of this hydroxyl group, OH group. Okay, so color state क्या होता है? Lower alcohols are colorless liquid. Lower alcohols are
colorless liquid. Now if we talk about phenols, तो जो pure phenol होते हैं they are colorless waxy solid. Pure phenols are colorless waxy solid. कभी कभी फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है whenever they come in contact with air, okay, तो वो colored हो जाते हैं, but pure phenol are colorless. Now odor की हम बात करें if, तो alcohol have particular characteristic smell, बहुत sharp smell होती है, right, that is known as alcoholic odor. okay, सेम इज द केस विथ फिनॉल. फिनॉल की भी एक बहुत शार्प कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसको हम बोलते हैं फिनोलिक ओडर. ओके, नाउ एसोसिएटेड नेचर. ये जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4, ये जो मॉलिक्यूल्स है दे दे रिमेन एज अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. ओके, वो डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल्स करके नहीं रहते. नाउ हाउ दे behave as an associated one? Because of the intermolecular hydrogen bonding. Now consider this is oxygen. okay, अभी ये ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन विल attract this electron pair present in oxygen hydrogen bond towards itself, जिसकी वजह से उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा हर अल्कोहल मॉलिक्यूल में होगा, राइट? ये भी पार्शियली नेगेटिव रहेगा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे भी ऑक्सीजन रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, right? So whenever this partially positively charged hydrogen of one alcohol molecule comes in the vicinity of the partially negatively charged oxygen atom of another alcohol molecule, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा और एक वीक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, अभी ये आगे दूसरे अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, बट number of alcohol molecules are held together by this hydrogen bond. Okay, so that's why there is intermolecular hydrogen bonding. Okay, associated रहते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट नहीं रहते. Fine. Okay, so now we will discuss about the boiling point of alcohols. Now boiling point of alcohols are higher in comparison to hydrocarbon, ethers, alkyl halides, aldehydes and ketones, okay, of comparable molecular mass. Now what do you mean by this is that कि आपके पास एक aldehyde है और एक alcohol है, okay, और दोनों का molecular mass same है. both the compounds have same molecular mass. तो किसका boiling point ज्यादा होगा? अल्कोहल का boiling point ज्यादा होगा और aldehyde का boiling point कम होगा. ओके, आई चीज समझ में? नाउ OH ग्रुप जो अल्कोहल और फिनॉल में प्रेजेंट है ना, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. हमने अभी देखा, राइट? ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? हमने अभी देखा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम इज द केस फॉर फिनॉल. अभी देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो ये फर्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल is bounded to another, sorry, first phenol molecule is bounded to another one by this weak force, that is hydrogen bond. So ये जो hydrogen bonding है ना, this is absent in case of ether, in case of hydrocarbon, right? तो अभी ये hydrogen bonding उसमें present नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या उनको वेपर स्टेट में लाने के लिए? नहीं. बस बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल देयर इज दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ विच वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट? हमको ज्यादा एनर्जी लग रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना? तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. आई चीज समझ में? क्लियर है? To get that compound in the vapor state, you must require the energy to break this hydrogen bond. Okay, and to break this hydrogen bond we require higher energy because there is intermolecular hydrogen bonding, and that's why boiling point of alcohols are higher. In case of phenol also it is higher. Okay, चीजें समझ में है? क्लियर है?
Okay, fine. So higher boiling point is mainly due to hydrogen bonding, and this type of hydrogen bonding is absent in case of ether, hydrocarbon, right? Aldehyde, ketones. Now, the boiling point increases with increase in molecular mass. जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा कंपाउंड का, वैसे वैसे boiling point भी increase होगा. Consider आपके पास प्रोपेनॉल है, ओके और आपके पास है ब्यूटेनॉल. दिस इज योर प्रोपेनॉल OH एंड दिस इज योर ब्यूटेनॉल, जिसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? 4 कार्बन एटम होते हैं. तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट हियर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी to get that compound in the vapor state. Okay, next thing is, in alcohol the boiling point decreases with the increase in the branching. जैसे जैसे isomers, if we talk about isomers like in case of butanol, butyl alcohol की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो there is N-butyl alcohol. Okay, this is isobutyl alcohol, this is secondary butyl alcohol and this is tertiary butyl alcohol. तो ब्रांचिंग बढ़ रही है. ब्रांचिंग बढ़ रही है मतलब ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी 4 कार्बन एटम की, राइट? और टर्शरी में ये 4 कार्बन एटम की चेन स्ट्रेट नहीं है, ये ब्रांच है. 2 कार्बन एटम सेकेंड नंबर के कार्बन एटम को अटैच्ड है, राइट? मिड वाले कार्बन एटम को अटैच्ड है. तो ये क्या हो गया? ब्रांच हो गई, राइट? तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी ना वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. देखो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेल्सियस है और एन ब्यूटिल का 117. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस एरिया है एन ब्यूटिल अल्कोहल का वो बहुत ज्यादा है, बड़ा है, राइट? बट जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा. अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा दैट मीन्स वंडरवॉल फोर्सेस भी डिक्रीज हो गए. अगर वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो गए दैट मीन्स हमको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू गेट दैट कंपाउंड इन द वेपर स्टेट. ओके, समझ में आ गया है? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, so next thing is boiling point increases with increase in number of hydroxyl group. Now if we talk about ethanol and if we talk about ethylene glycol, ethanol में क्या होता है? एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट? बट इन केस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कितने OH ग्रुप होते हैं? 2 OH ग्रुप होते हैं. तो जैसे जैसे आपके कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. These are the some things which you have to keep in mind with respect to boiling points. Okay, I hope everything is clear about boiling point. Now next is solubility. Now whether alcohol is soluble in water? Yes, alcohols are soluble in water, right? आपने टीवी मूवीज वगैरह में देखा होगा जब कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो पानी मिला के करता है, राइट? कोई कोई पानी नहीं भी मिलाता जिन्हें स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, बट मिलाता है दैट मीन्स अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना? नाउ लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर अल्कोहल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. चीज याद रखना, लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर लेकिन हायर अल्कोहल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट फिनॉल्स, अगर हम फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल के केस में दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. फिनॉल are sparingly soluble in water. They are soluble in alcohol, ether, organic solvents. Okay, alcohol, ether में soluble होते हैं phenols, but अगर हम water की बात करें तो they are sparingly soluble. उनकी solubility इतनी नहीं है जितनी alcohol की है. Okay, we'll see the reason for that. Now, solubility of alcohols and phenols in water is due to the ability to form hydrogen bonds with water molecules, right? अभी किसी भी substance को water में soluble होना है, that means उस substance को water के साथ bonding करनी पड़ेगी, right? Now look, this is your alcohol, okay, and this is your water molecule H2O. okay, तो यहाँ पे O ऑक्सीजन निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है. यहाँ पे भी
your oxygen is partially negative, hydrogen is partially positive. तो इनके बीच में क्या होगा? There is hydrogen bond. ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आइटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे भी सेम केस होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, राइट. नाउ दिस बॉन्ड डॉटेड से दिखाते हैं क्योंकि ये वीक फोर्स है और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, राइट. It is a weak force which held water molecule and alcohol together, alcohol molecule together, right? So solubility is because of this hydrogen bond. ये जो hydrogen bond बने हैं इनके वजह से alcohols are soluble in water. ये जो आपका alkyl group है, this alkyl group is non-polar group, right? Polarity polar कौन सा group है? OH group is the polar group. ओके तो पोलैरिटी किसकी वजह से? OH ग्रुप की वजह से. एंड अल्किल ग्रुप एंड अलील ग्रुप आर नॉन पोलर ग्रुप. ये चीज याद रखना, ये नॉन पोलर ग्रुप है, ये सोल्यूबल नहीं होते, ये सोल्यूबल नहीं है. इनको कौन सोल्यूबल करवा रहा है? OH ग्रुप सोल्यूबल करवा रहा है, राइट. तो यहाँ पे देखो, दिस इज योर इथिल अल्कोहल, ओके, CH3 CH2 OH. सो दिस इज योर पोलर हेड एंड दिस इज योर नॉन पोलर टेल. ये जो अल्किल ग्रुप है CH2 CH3, दिस इज योर नॉन पोलर टेल. तो अभी आप देखो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ओके, आपके पास टिकट है, ठीक है, आप रिजर्वेशन का टिकट लेके जा रहे हो, आपके पास टिकट है, लेकिन आपके साथ आपका एक और फैमिली मेंबर आ गया जिसके पास टिकट नहीं है, जनरल टिकट है, ओके, तो वो आप उसको रिजर्वेशन में एडजस्ट कर सकते हो, राइट. क्यों? क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन की टिकट है, आपके पास बर्थ है ना. तो अगर आप फैमिली के 5 मेंबर को लेके जाओगे तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है. लेकिन फैमिली का एक मेंबर आ जाए तो पॉसिबल है, पॉसिबल है. सेम चीज होता है, अगर ये वाला अल्कोहल का जो ग्रुप है, OH जो ग्रुप है, दैट इज पोलर, और जो डिसॉल्व जो सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप, ओके. तो अगर इसके साथ छोटे मतलब स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो नॉन पोलर है वो अगर आता है तो वो उसको सोल्यूबल कर देगा. लेकिन जैसे जैसे देखो, अभी यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज होते जा रही है, राइट, और यहाँ पे OH है ना, अभी सोल्यूबल तो सिर्फ इतना ही ग्रुप है ना. अभी ये इतना बड़ा लगेज जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना बड़ा लगेज इसके साथ है, ये पूरे को सोल्यूबल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन पोलर टेल जो है, जो नॉन पोलर ग्रुप है, जो अल्किल ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट. तो जो OH ग्रुप है आपका, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी है, वो इतने बड़े ग्रुप को सोल्यूबल नहीं कर पा सकता है. दैट्स व्हाई हायर अल्कोहल्स आर insoluble in water, okay. Now solubility decreases with the increase in size of alkyl groups. यही जो मैंने अभी बोला, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, नाउ कंसिडर, यहाँ पे आपका ये इथेनॉल है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम है, 1 and 2, राइट. अभी जैसे जैसे ये कार्बन चेन बढ़ेगी, ऐसे कार्बन चेन बढ़ गई और यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ गया, तो एज साइज ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, ये साइज बढ़ गई ना अल्किल ग्रुप की, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज दिस कंप्लीट ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक. ये जो कंप्लीट अल्किल ग्रुप है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, एंड दिस OH इज हाइड्रोफिलिक. दैट इज द रीजन व्हाई higher alcohols are insoluble in water. In case of phenol also, phenol के केस में क्या होता है, बहुत बड़ा रिंग होता है, अरिल ग्रुप होता है, राइट, एंड दैट अरिल ग्रुप इज नॉन पोलर, दैट अरिल ग्रुप इज नॉन पोलर, दैट इज हाइड्रोफोबिक. तो ये OH ग्रुप जो है ना, ये इतने बड़े अरिल ग्रुप को सोल्यूबल नहीं कर सकता वाटर के अंदर. That is the reason why phenols are sparingly soluble in water, but they are soluble in organic solvent like alcohol, ether. Okay, I hope solubility is clear to everyone. Okay, so now we will discuss about the chemical properties of alcohols. So first thing first, in this we have to see 2 reaction. First is reaction involving cleavage of OH bond, मतलब ये आपका alcohol है, okay. So इसमें हम देखेंगे cleavage of OH bond and cleavage of carbon
ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, तो पहले हम देखेंगे OH बॉन्ड का क्लीवेज, मतलब ये यहां से जब क्लीव होता है तब कौन से रिएक्शंस होंगे. ओके, नाउ कंसिडर इफ अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल और एल्यूमिनियम मेटल और पोटेशियम. ओके, तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. कैसे रिलीज होगा? बाय द क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, RO निगेटिव, और उसके पास कौन आ गया, Na पॉजिटिव. तो क्या बन गया, सोडियम अल्कोक्साइड, RONA बन गया. और क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया. ओके, सेम इज द केस विथ फिनॉल. फिनॉल के केस में भी ये बॉन्ड क्लिव होगा, H2 इवॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na. तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया. सो ये दो रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है, दिस टू रिएक्शन shows us that alcohols and phenols, both the compounds are acidic in nature. दोनों ही कंपाउंड कैसे है, एसिडिक है. Why we call them acidic? Because they release proton, right? They will act as proton donor. ये proton donor करके act कर रहे हैं, है ना? So that's why they are acidic in nature. In fact, they are which acid? They are Bronsted acid. Okay, they can donate proton to a stronger base. Now this I will explain you later. Now हमेशा याद रखना, weak acid doesn't react with weak base. ठीक है, वीक एसिड को रिएक्शन करनी है अगर बेस के साथ तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस ही लगेगा, तभी जाके वो रिएक्ट होगा, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेगा. चीज याद रखना. ओके, सो दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. ओके, बी विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, और ये आपका एसिड है, अल्कोहल है. ओके, ROH. नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट? तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन दिस OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. और जैसे ही ये OH बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में प्रेजेंट थी, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये अपने तरफ खींचेगा. पहले ये इक्वली शेयर्ड थे, राइट? अभी ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको अपने तरफ खींच लिया. नाउ यहाँ पे देखो, दिस इज योर H, दिस इज योर बॉन्ड, और ये वाला पहले ये इक्वली शेयर थे, राइट? इक्वी डिस्टेंस थे. अभी ऑक्सीजन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको अपने तरफ खींच लिया, मतलब ऐसे, राइट? तो ये जो H है, जो H पॉजिटिव है, और उसकी वजह से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये हाइड्रोजन थोड़ा रिलीज हो गया, थोड़ा फ्री हो गया, राइट, फ्रॉम दिस बॉन्ड पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन ने वो बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लिया है, राइट? तो अभी क्या होगा, जब ये बेस इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा और B के साथ चला जाएगा, राइट? तो क्या बन जाएगा, BH. और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, RO निगेटिव, विच इज योर अल्कोक्साइड आयन. ये क्या है, अल्कोक्साइड आयन है. सो ये चीज आपको याद रखनी है, अल्कोक्साइड आयन. अल्कोहल जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, अल्कोक्साइड आयन बनाएगा. और जब वो कब प्रोटॉन डोनेट करेगा, जब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी वो प्रोटॉन डोनेट करेगा. नाउ अभी अल्कोहल के बारे में कुछ चीजें याद रख लो, दैट अल्कोहल आर न्यूट्रल टू लिटमस, राइट? ब्लू को रेड में टर्न नहीं करेगा, रेड को ब्लू में टर्न नहीं करेगा, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस. ओके, नाउ अल्कोहल एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेसिस. अल्कोहल एसिड भी है, ब्रोंस्टेड एसिड. क्यों? बिकॉज दे डोनेट प्रोटॉन, है ना? वो बेसिस भी. अभी बेसिस क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन. ओके, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, इसके वजह से वो बेस भी है. ठीक है. नाउ अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. ये चीज याद रखना, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, मतलब वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, अल्कोहल से. ऐसा क्यों? ये देखो, जैसे मैंने बोला, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, जिसके वजह से उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? सो ये जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना, partial negatively oxygen atom and partial positively charged hydrogen atom, right?
तो अभी अल्कोहल के केस में क्या होता है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, अल्किल ग्रुप क्या करेगा, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अभी ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो वो पहले क्या कर रहा था, वो पहले हाइड्रोजन से ले रहा था, राइट, बट अभी ये खुद से दे रहा है। तो अभी ऑक्सीजन को और ज्यादा जरूरत है क्या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेने की? ऑफ कोर्स नहीं है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, किस पे बढ़ गई है, ऑक्सीजन पे। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि अल्किल ग्रुप ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, राइट। ध्यान दो इधर, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पहले कहाँ से ले रहा था, वो पहले OH बॉन्ड से ले रहा था, बट अभी उसके पास अल्किल ग्रुप है। तो अल्किल ग्रुप क्या करेगा, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो खुद से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो अभी ये खुद से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जरूरत है कि ऑक्सीजन को हाइड्रो इस बॉन्ड से लेने की, नहीं जरूरत है, राइट। तो जितने आसानी से, अभी इन केस ऑफ वाटर देखते हैं हम, वाटर के केस में भी सेम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद के तरफ इस बॉन्ड पेयर में, राइट, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हाइड्रोजन फ्री हो गया रिलीज होने के लिए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो किसके पास चलेगा, ऑक्सीजन के पास चलेगा ना, ऑक्सीजन ने ज्यादा अट्रैक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा फ्री हो गया, ज्यादा पोलैरिटी है इस बॉन्ड में, जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा रिलीज के लिए, राइट, इजीली रिलीजेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज अल्किल ग्रुप ने दे दिया है, तो अभी ऑक्सीजन ने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था इस बॉन्ड से, वो उतना नहीं किया जितना उसने यहाँ पे किया था, राइट, जितना उसने यहाँ पे किया ना, उतना अभी यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे H पॉजिटिव का रिलीज अभी उतना इजी नहीं है, आई चीज समझ में, यहाँ पे H पॉजिटिव का रिलीज उतना इजी नहीं है। यहाँ पे इजी हो गया है बिकॉज यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को सेटिस्फाई कर सके, बट यहाँ पे वो अल्किल ग्रुप ने किया है, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी थी वो डिक्रीज हो गई, और बिकॉज ऑफ विच अल्कोहल विल एक्ट एज अ वीकर एसिड देन वाटर। एसिड किसको बोलते हैं, जो बहुत जल्दी प्रोटॉन डोनेट करे, राइट, प्रोटॉन रिलीज करे, दैट इज एसिड। जो जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, जो जितना जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, वाटर will easily release his proton because the bond pair which is shared by oxygen and hydrogen bond is attracted towards oxygen. So now hydrogen is free to release, right? यहाँ पे जो है ना वो अभी भी attracted है towards oxygen, अभी भी bounded है with oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन ने पहले जितना अट्रैक्शन दिखाया था, पहले जितना इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट किया था खुद के तरफ, अभी वो उतना नहीं कर रहा है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से मिल रहे हैं, ओके। सो दैट इज द थिंग एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ओके। नाउ यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपका अल्कोक्साइड है, राइट। मैंने पहले ही बोला, जब अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट करेगा, ROH, जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा, राइट, ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा प्लस H पॉजिटिव बनेगा, है ना। मतलब उसने क्या किया, प्रोटॉन रिलीज किया, आई चीज समझ में। तो ये अल्कोक्साइड आयन व्हेन इट इज रिएक्ट विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल डोनेट इट्स, ये बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। एंड हियर as this bond is polar, oxygen will attract electron pair towards itself,
it will release H positive and what's remaining, hydroxide ion, OH negative, right? तो अभी इससे क्या पता चलता है हमको कि ये जो वाटर है ना, दैट इज बेटर प्रोटॉन डोनर, दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, राइट? और ये जो रिएक्शन में हमने देखा, इससे हमें ये पता चला कि जो अल्कोक्साइड आयन है, जो RO नेगेटिव आयन है, दैट इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर. इसने क्या किया, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया ना टू फॉर्म अल्कोहल. सो दिस इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, तो स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हुआ, अल्कोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गर बेस. और स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हुआ, वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. ये चीज याद रखना, वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अल्कोक्साइड आयन इज द स्ट्रॉन्गर बेस. किससे, अल्कोक्साइड आयन किससे स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोक्साइड आयन से. क्यों, बिकॉज इट इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर. और वाटर क्यों अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है देन अल्कोहल, बिकॉज इट इज अ बेटर प्रोटॉन donor. Why it is a better proton donor, because there is no inductive effect. यहाँ पे कोई plus I effect नहीं है. In case of alcohol there is plus I effect, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पोलैरिटी थी वो थोड़ी डिक्रीज हो गई थी, राइट? यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है. नाउ अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, the acidic character of alcohol is due to polar nature of OH bond, राइट? सो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आइदर वो CH3 हो या फिर C2H5 हो, that is increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond. अभी देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये मिथिल अल्कोहल, this is primary, this is secondary, this is tertiary. okay, so यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, राइट? यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है ना? तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सिर्फ इस कार्बन से अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये कार्बन किससे करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन से ही करेगा ना, है ना? तो इन केस ऑफ प्राइमरी क्या होगा, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट? तो ये इसको देगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन को देगा. तो अभी मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन को जरूरत है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, OH जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मिल रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है. तो वो क्यों यहाँ से लेगा, अगर वो यहाँ से नहीं लेगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा, राइट? वेदर इट विल एक्ट एज अ बेटर प्रोटॉन डोनर, नो. वेदर इट विल एक्ट एज अ बेटर एसिड, नो. आई चीज समझ में? इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में वहां पे दो अल्किल रिलीजिंग ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, राइट? देयर आर टू अल्किल ग्रुप्स. तो ये यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और कार्बन इसको दे रहा है, राइट? इन केस ऑफ टर्शरी, ऑक्सीजन यहाँ से तो ले रहा, बट इस कार्बन को ये अल्किल ग्रुप से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, राइट? तो इस ऑक्सीजन को तो जरूरत ही नहीं है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, राइट? नो डाउट इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट उसको ऑलरेडी मिल रहा है ना, तो वो क्यों यहाँ से लेगा, राइट? So that is the thing, and that's why there is a decrease in acid strength. You will see now acid strength decreases in this way. या ये इस साइड इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मतलब सबसे ज्यादा किसका है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, मिथिल अल्कोहल, राइट? फर्स्ट है वाटर, नो डाउट, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड. उसके बाद आएगा आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल में कौन सा आएगा, मिथिल अल्कोहल, CH3OH. उसके बाद आएगा आपका इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल, राइट? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, राइट? अल्किल ग्रुप बढ़ेगी ना, सॉरी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. तो ये यहाँ पे CH3 CH2OH इथिल ग्रुप है, राइट? तो उसके बाद आएगा इथिल CH2 C2H5OH. ओके, फिर आएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल,
आइसोप्रोपिल अल्कोहल और फिर आएगा आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। आई चीज समझ में क्लियर है? इफ यू गो फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड देन acidity increases. सिर्फ इतना याद रखना, as the number of alkyl group increases bounded to the carbon atom, number of alkyl group bounded to carbon atom which is attached to OH group, मतलब इस कार्बन एटम को जो किसको अटैच्ड है, OH ग्रुप को अटैच्ड है, अगर इसको जो अल्किल ग्रुप बाउंडेड है उनका नंबर बढ़ रहा है, the number of alkyl group increases, then acidic strength decreases. Okay, number of alkyl group attached to the carbon atom which was directly attached to the hydroxyl group increases, then acidic strength decreases. ये चीज याद रखना, यही दिया है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स में। और इस पे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं कि इंक्रीज द like arrange the following compounds in ascending or descending order according to their acidity. Okay, so उस टाइम पे आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने देखा ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट मिक्सअप करके आपको वो एक ऑर्डर बनाना होता है, राइट? कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा तो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? फिर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी कंपेयर करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा, किससे? ईथर से ज्यादा होगा, और अल्डेहाइड से ज्यादा होगा, कीटोन से ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, राइट? तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। सोल्यूबिलिटी पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग compound is more soluble in water, arrange them in ascending or decreasing order. Okay, so this is all about the physical and chemical properties of alcohol. Now we will see some reactions of alcohol in coming class. Okay, in which again we will see the reactions with the same OH bond cleavage. Okay, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम हमारे आगे के लेक्चर में। Till then, study this property, physical and chemical properties of alcohols and phenols. Okay, and if you have any doubt you can ask me in the comment section given below. And guys, if you are liking my videos, please hit the like button, okay, so that it keep me motivating to innovate the things. Okay, so see you in the next lecture. Till then, take care, keep learning. Bye bye. Thank you.